बिस्टॉक विद डॉन में दोस्तों आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आई एम गोइंग टू गेट यू इंट्रोड्यूस टू अ कंपनी व्हिच इज गोइंग टू गेट लिस्टेड ऑन द एनएससी बोर्ड ऑफ द एमएसएमई व्हिच इज नोन एज द एनएससी इमर्ज, और इस कंपनी का नाम है वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। दे आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द वाइब्रेंट स्टेट ऑफ गुजरात एंड वी गोइंग टू गेट इंट्रोड्यूस टू मिस्टर राजगोपाल रेड्डी, हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो राजगोपाल रेड्डी साहब, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू। दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर राजगोपाल रेड्डी, और इन्होंने पिछले 20 साल में एक जॉब करते थे। ही इज अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पोर्शन, वो सीन कंप्लीट करने के बाद फिर उन्होंने अपना ये वेंचर शुरू किया, वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो रेड्डी साहब, मेरा पहला सवाल आपके साथ है कि हाउ डू यू डिस्क्राइब योर कंपनी वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड? Yes, VL Infra Projects Limited, a company formed in Gujarat with the name of VL Infra Projects Private Limited in the year 2014 December, and this company is converted to limited in the last year 2023 October. We are into water supply projects majorly, and we will do roadworks as well as building construction and irrigation projects also. दोस्तों, यहाँ पे जैसे रेड्डी साहब ने बोला कि they're going to get into irrigation and all, let me tell you, I'll just give you World Bank, in fact, which is known as the International Bank for Reconstruction and Development, basically is looking at a developing country like India into water projects and irrigation projects. And I'm sure, in fact, यहाँ पे Rajgopal Reddy has, hit on to the right, this thing, that in fact, he's getting into irrigation and water projects. Second question to you would be, why did you choose water supply projects? ये कैसे आया आइडिया? ऑफ कोर्स वन जो मैंने आई मीन इसकी डिमांड है, बट आपके दिमाग में ये कैसे आया? So actually I was a mechanical engineer, sir. Based on my mechanical background, I joined in a company who works for water supply works in the initial days of my job, 2003, when I came to Gujarat. From there onwards, based on my experience and things, we are into water works. उसका एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं वाटर वर्क्स में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हम लोग अभी डाइवर्सिफाई होते जा रहे हैं कि इरिगेशन, बिल्डिंग, ये सब में भी करते जाएंगे। एज ए बिजनेसमैन वी कैन डू एनीथिंग, बट एज ए इंजीनियर आई एम मोरली स्पेशलाइज्ड इन मैकेनिकल। सो सर, अपने कुछ प्रमोटर्स के बारे में बताइए, एंड जस्ट गिव अस अ शॉर्ट a helicopter view of the credentials of the promoters. So myself, Rajagopal Reddy, CMD, and second person is Maithili Rajagopal Reddy, my wife. She takes care of the administration of the company. And the third person is Mr. Nageshwar Rao Raipuri. He takes care of the accounts, taxation, and finance of the company. So, Reddy Sahab, I mean, you've been in Gujarat for almost 20 years. I mean, how do you look at the vibrant state, Gujarat? Very good, sir. Expanding like anything. इसका ग्रोथ लेवल देखेंगे तो लास्ट 20 साल में when I came to Gujarat, अभी का गुजरात we cannot compare like any aspects. इतना ग्रो हुआ है। Absolutely. दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जैसे रेड्डी साहब ने बोला कि you cannot imagine, I mean, you have to go yourself, look with your own eyes, I mean, how the Gujarat state is. यहाँ पे मैं कहूंगा दोस्तों, एक किताब लिखी है Vibrant Gujarat by the great economist, in fact, I mean, who's also associated with the government and he's closely working with Prime Minister Narendra Modi, and his name is Dr. Vivek Debroy. तो यहाँ पे जितने भी लोग इस प्रोग्राम बिस्टॉक विद डॉन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये कहूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़ें. In fact, because he's used the word vibrant, तो यहाँ पे vibrant is something very important. I mean, you yourself have to go and imagine and see that state. I mean, how that state is vibrant, Gujarat. Am I right, Reddy Saab? Yes, sir. Yes. Okay. सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है, हु आर योर 5 टॉप क्लाइंट्स? आई मीन, आप नाम नहीं दे सकते हैं तो बिल्कुल उसको अवॉइड करिए, बट अगर आपके टॉप 5 क्लाइंट्स में उनकी कंट्रीब्यूशन टू योर ओवरऑल रेवेन्यू में परसेंटेज टर्म्स में बताइएगा। ऑलमोस्ट 90% रहेंगे। अच्छा, ये 90% आपका सारा वाटर प्रोजेक्ट्स में है। यस, वाटर प्रोजेक्ट्स में। ओके सर, अब जैसे आपने कहा कि पिछले 20 साल से आप यू आर वर्किंग कंटिन्यूअसली इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, how dependent are you on the local government, the state of Gujarat basically? Local government तो supportive है sir for all the infra companies and all.
एंड इसमें अपना वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे तो उसमें मेजर स्टेक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता है, तो जल सेना योजना, जल जीवन मिशन, ऐसा जो भी प्रोजेक्ट्स होता है वाटर सप्लाई का रिलेटेड में मैक्सिमम स्टेक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता है फंडिंग में भी। तो स्टेट गवर्नमेंट के इतना रहना कि एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में वो लोग सपोर्टिव रहे बस। बराबर है सर। यहाँ पे मैं जनता जो लोग इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं ये कहूंगा दोस्तों कि the total amount of money, in fact, which has been collected by the state and by the center, of course, I mean, states also have a share to take from the respective union government से, तो यूनियन से भी उनको कुछ पैसा मिलता है। तो जैसे रेड्डी साहब ने बोला कि कई प्रोजेक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेक रहता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, which is fantastic। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड्डी साहब आपने ये बड़ी अच्छी कंपनी बनाई, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? बिकॉज एवरी कंपनी ऑफ कोर्स हैज गॉट अ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो आप स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। लेट अस फॉरगेट अबाउट द वीकनेस पार्ट। robust track record of the company sir, completion of the projects में हमारा एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज लास्ट मेरा 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस है, मेरा फाइनेंस वाला बैकग्राउंड पर्सन जो है ऑलमोस्ट 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जो हम लोग कॉर्पोरेट कंपनीज में जहाँ काम करके आए वो उसका सिस्टम्स जो हम लोग अलग अलग कंपनीज का सिस्टम्स जो बेस्टर ऑप्शन है मींस बेस्ट थिंग्स हम लोग हमारा कंपनी में अप्लीकेबल करके उसको बेटर वेज में अचीव कर रहे हैं। एंड दूसरा मेरा जो बेस्ट रिलेशंस है इन गुजरात में, तो 20 साल से तो मैं गुजरात में ही हूँ। यहाँ का गवर्नमेंट रिलेशंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का हो सकता है, ऐसा सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सबसे मेरा रिलेशंस जो है बेस्ड ऑन माय रिलेशंस वी कैन डू बेटर वर्क कंपैरेटिव टू अदर्स विद क्वालिटी। रेड्डी साहब, आई मीन एवरी बिजनेस ऑफ कोर्स पे हर बिजनेस में कंपटीशन है, और मेरा ऐसा मानना है कि कंपटीशन इज द बिगेस्ट रेगुलेटर। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कंज्यूमर को हमेशा इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलेंगे, और कंपटीशन जब होता है तो आपको ह्यूमन बीइंग के अकाउंट के ऊपर आपको कोई ह्यूमन बीइंग अपॉइंट नहीं करना है एज अ रेगुलेटर, क्योंकि कंपटीशन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट रेगुलेटर। तो यहाँ पे मैं ये कहता हूं कि अलर्टनेस रहती है, जो प्रोड्यूसर है वो भी बड़ा अलर्ट रहता है और कंज्यूमर को भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके भी बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स हैं। आई डोंट वांट टू नो द नेम्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, बट हाउ डू यू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स? आपकी क्या कुछ ऐसी बातें बताइए कि जिससे दिस सेपरेट्स यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। मेन थिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड विद क्वालिटी। सेकंड थिंग अपना जो सप्लायर्स, जो मेरा रिलेशंस, एज आई टोल्ड फॉर द अर्लियर क्वेश्चन, मेरा रिलेशन जो है सप्लायर्स के साथ जो बेटर रेट्स में मेरे को सप्लाई हो सकता है, बेस्ड ऑन दैट मैं दूसरे से कंपैरिजन में बेटर कोट भी कर सकता हूं टेंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोजेक्ट मिलने के लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहता है बेस्ड ऑन माय रिलेशंस। या दोस्तों, यहाँ पे रेड्डी साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि किसी भी बिजनेस में आज की डेट में मोनोपोली नहीं होती है। इट इज वर्चुअली ये कि खाली सिर्फ थ्योरी में हम सुनते हैं कि देयर इज मोनोपोली, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, आई मीन देयर इज ऑलवेज कंपटीशन, एंड कंपटीशन ऑफ कोर्स इज वेरी हेल्दी। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि मेरा जो सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कंपेयर टू माय पीयर्स इज कि मैं क्वालिटी वर्क करता हूँ, टाइम पे एग्जीक्यूट करता हूँ, और जैसे रेड्डी साहब ने बोला कि व्हेन द प्रोजेक्ट इज बीन एग्जीक्यूटेड ऑन टाइम, तो यहाँ पे कॉस्ट ओवररन नहीं होता है। एम आई राइट रेड्डी साहब? यस सर। और जैसे इन्होंने कहा कि अपने सप्लायर्स को वो टाइम पे पेमेंट करते हैं एंड दे बाय द प्रोडक्ट एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस, और दैट इज व्हाट द बेसिक रूल इज कि आप जब उसको बेसिक प्राइस पे लेते हैं और उनको टाइम पे पेमेंट करते हैं तो कहीं पे भी आपकी चेन में कहीं पे भी डिस्टॉर्शंस नहीं आते हैं। Am I right to read it, रेड्डी साहब? Yes sir, we can get the better price also based on that. Absolutely, absolutely. रेड्डी साहब, जब आप यूनियन गवर्नमेंट और इन सब प्रोजेक्ट्स में जब आप बिड करते हैं, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि इनफैक्ट यू वर्क ऑन कॉस्ट प्लस कॉन्सेप्ट, एंड प्लस इज समथिंग अराउंड 15%. When we see bigger companies, जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर में, particularly in fact they work on this concept of cost plus of 15%, मतलब you can't go beyond 15% क्योंकि कंपटीशन रहता है। तो how do you look at it कि आप जो बोल रहे हैं कि 5.56%, how are you planning to enhance it to take it to the next level of 10% and something beyond 10%? उसमें आप कैसे वर्कआउट कर रहे हैं? जैसा जैसा कंपनी का ग्रोथ बढ़ते जाएंगे सर, वो प्रॉफिटेबिलिटी का भी बढ़ने का चांसेस ज्यादा ही होता है। वंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि रेड्डी साहब, वंस यू एस्टैब्लिश योर, आपका नाम एक बार एस्टैब्लिश हो गया, एक बार नाम आपका एस्टैब्लिश हो गया, तो यू कैन कमांड दैट काइंड ऑफ अ प्राइस।
सर एक 50 करोड़ का टेंडर करने में तो कंपटीशन जैसा रहेगा, 500 करोड़ में तो नहीं रहेगा। एग्जैक्टली साहब, ये तो हमने जैसे प्रेजेंट के बारे में आपसे बात की, कुछ फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, यू नो फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में, एंड द प्लान वुड बी द फ्यूचर प्लान्स, बिकॉज दोस्तों अभी तक तो हम प्रेजेंट प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे। नाउ व्हेन वी गेट ऑन टू द फ्यूचर प्लान्स, माय क्वेश्चन टू रेड्डी साहब इज व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एंड डू यू प्लान टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यू एरियाज ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी तक तो आपका 90% रेवेन्यू कमिंग इन फ्रॉम वाटर एंड इरिगेशन, so Yes. what are your future plans and related to the other construction activities? कमिंग ईयर में हमारा प्लान है सर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरला, ये स्टेट्स में काम करने के लिए, that too not only for water works, for roads and building construction also। उसका रिलेटेड में हम लोग अभी से ट्रैकिंग चल रहे, वहाँ का क्या सिचुएशन है, पेमेंट कंडीशन कैसे रहेंगे, ये सब हम लोग ट्रैकिंग चल रहे हैं। ये फाइनेंशियल मोस्ट प्रोबेबली 24-25 में एक दो प्रोजेक्ट लेंगे। सर रोड प्रोजेक्ट्स में रेड्डी साहब जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स ऑफ कोर्स आप लीज पे लेते हैं कि इनफैक्ट यू ओन सम इक्विपमेंट्स आल्सो? लीज पे ही होंगे सर, अपना वॉल्यूम पे तो अपना छोटा छोटा वर्क्स ही होता है आज का डेट में। डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो लेंगे, जो जिसका भी मिलता है हम सब कॉन्ट्रैक्टर के, दे विल प्रोवाइड द मशीनरी। हम लोग डायरेक्ट वर्क्स पे लेंगे, दैट टाइम वी आर सपोज्ड टू परचेज द मशीनरी आल्सो। और कितना आने वाले समय में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में कितना परसेंटेज आपका कंसंट्रेशन रहेगा? 10-15% ईच सेगमेंट में प्लानिंग है सर। वाटर तो मिनिमम 50% तो वाटर रहेंगे ही, बाकी रोड बिल्डिंग सब मिला के हम लोग बाकी 50% करने का प्लान। दोस्तों यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी टू टेक द इंटरव्यू ऑफ रेड्डी साहब, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, एंड हिज विजन इज वेरी क्लियर। लेट मी टेल यू, द कंसंट्रेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक का भी यही है कि इंडिया जैसी कंट्री में दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड वाटर, और यहीं पे इन्होंने राइट इस पे जो बुल्स आई पे द चेयरमैन हैज हिट ऑन द बुल्स। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, looking at the way India is growing, आप क्या देखते हैं, what are the opportunities you see for your company in times to come? तो गवर्नमेंट का तो इतना स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू में ओवरऑल इंडिया में हर एक स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन का मेरा आंसर था, तो अदर स्टेट्स में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो है, उसको ग्रैब करके आगे हम कैसे जाने वाले हैं उसके ऊपर है। तो लास्ट 6 महीने से हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा है, मीन्स लाइक आंध्र प्रदेश में तो एक अमरावती करके जो डेवलप कर रहा है, वहाँ का 50,000 करोड़ का काम आने वाला है अभी कमिंग 5 to 6 मंथ्स के अंदर ही होगा। तो उसके बाद उड़ीसा में तो वाटर सेक्टर का ऑलरेडी चल रहा है, केरला में अच्छा है, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लास्ट 1 साल से सुनते आ रहे बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है। तो वहाँ पे भी हम लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, हमारा भी थोड़ा स्टेक रहे वो स्टेट में ऐसा। सो आई मीन दोस्तों, रेड्डी साहब की जो बिजनेस पॉलिसी है, that he doesn't want to put all his eggs into one basket, particularly concentrate only in the vibrant state of Gujarat. As you know, he would also like to diversify, and what he correctly said, he's looked at states like Kerala, which is again you have a lot of opportunities there. Odisha में तो बहुत ही अच्छी opportunities हैं, और जैसे रेड्डी साहब ने कहा उत्तर प्रदेश again is a growing state, the largest state in India. तो यहाँ पे रेड्डी साहब, अभी तक जो आपने कंपनी को इस लेवल पे लेके आए, तो आईपीओ तो अभी आप लेके आ रहे हैं, लेकिन अब तक आपने कंपनी को कैसे फाइनेंस किया टिल नाउ? बैंकिंग का सपोर्ट से है सर, दूसरा हमारा खुद का एक्रेल्स, सो बैंक लोन्स से चला है, बट बेसिकली बैंक लोन्स। परफेक्ट। सो यहाँ पे दोस्तों हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। लेट मी थैंक मिस्टर रेड्डी एंड ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू रेड्डी साहब फॉर योर न्यू वेंचर और आपके आने वाले समय आईपीओ के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।